Good morning, Good everyone. morning. Good morning, everyone. Just wait for 1 minute. I'm opening the. I have shared the presentation. Can you see now? Hello. I have shared the presentation. No, sir. No, sir. Oh no. Okay. Okay. Wait. No, Wait. There is some problem. Can you see it now? No, sir. no, sir. Now it's visible, sir. Now visible. Okay. You can see this now. Yes, sir. Okay. Good. Yes, sir. I think we got the schedule. Na? Schedule for examination. Final exam. I hope all of you have received. Yes, sir. Yes, sir. Okay. We are having next week, na? Next week on Thursday, Friday, right? Yes, sir. Okay. This is B5, right? So B5 we are having on next week in during the class time, right? So here what I'm planning, uh, we have completed this na sheet number 6, right? We have done sheet number 6, 2 questions. Yes, that is okay. I think that is enough. All questions are most are similar. So what I'm planning, like we will do one question or two question from each the seats today, and I will take extra class on Sunday, right? So we have to complete up to Sunday, and I will give you time by Tuesday. By Tuesday, you have to submit all the sheets in AutoCAD file, and Friday we will have Viva and exam. Is it clear? Sir, could you please extend the deadline to Thursday? Not all the seats, like this one, seat number 7 and seat number 8. Sir, we have exam on Monday and Tuesday, sir. Yes, Chemistry and sir. computer science. What Monday and Tuesday? Sir, chemistry exam is on Monday and computer on So Tuesday. when you can submit? Wednesday you can submit now. Yes, sir. Wednesday. Okay, so Wednesday evening 7 p.m. Okay, Okay, Yes. sir. so you can Okay, sir. submit. I will take today class and Sunday class. Okay, so Sunday I will take only 1.5 hour,
1.5 hour will be completed, so we can complete. So if you're doing, means most of the questions are similar, only some variation is there. Even if you're learning only one question properly and doing in AutoCAD, then it is fine. Okay, if you're learning properly, okay, not copying, you're not looking into other files. Okay, so then it is good. Okay, so this is okay. This here now, like we have done two questions, so similarly there are other two questions. Okay, like that object only has been changed. So So this is not this is not projection of solid. This is section of solid. You just correct it. Okay, I have sent you that one PDF file also. Na, do you remember? A question of all the sheets I have sent you the PDF format. yes, If you see that na, if you see that this is not projection of solid. This is section of solid. Can you see sheet number 7? Can anyone confirm me? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. This is section of solid, right? Okay. Okay, so now you see here, before this, I have told you, na, these are the solids, cylinder, cone, what is prism, pyramid. We have discussed, I have discussed this, na? Yes, sir. Okay. So see here, in section of solid means what? Suppose you are having this cylinder, right? So there is a one cylinder. See, you follow my what I'm saying. Okay, you follow me. There is one cylinder, base of which is kept on horizontal plane. Okay, and there is one plane which is plane, you know, na, any plane which can cut this solid. Means like with suppose this plane is cutter. Okay, and this plane is going to cut the solid at any location. Suppose this plane is cutting like this. You have to assume, okay, at any height it is cutting this plane, and assume base of this cylinders is resting on horizontal plane, right? And there is one plane, a rectangular plane, which is parallel to the horizontal plane and perpendicular to the vertical plane. Are you getting my point? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Some of you are making noise. All of you keep yourself mute. Okay. So see, when you are having cylinder, na, this cylinder. So you know already, na, like you come here. See, this is your horizontal plane, right? And this is your vertical plane. Now you take one plane which is rectangular plane, any plane which is very sharp, okay, and it can cut this solid. So when it will cut this solid, okay. So try to understand. Okay, I'm not doing it properly. When it will cut this solid, so you can say the plane which is a rectangular plane which is going to cut this solid. That plane is oriented like this. That plane is parallel to the horizontal plane and perpendicular to the vertical plane. And when you will cut and you remove the upper portion, you remove this upper portion. Are you getting your point? And after removing, you look from the top and front how it will look like. Or now you change the orientation of that plane, cutting plane. Suppose that plane is making 45-degree angle with horizontal plane. That plane is cutting 45-degree, means there is one plane which is going to cut like this. Means any plane, this plane is perpendicular to the vertical plane, okay, and this is this is going to cut like this. Are you getting this? Hello. Yes, sir. When Yes, sir. when this plane was this plane was parallel to horizontal plane, in that case, when you are cutting the solid and you're removing the upper portion and looking from the top, what you will see? When cutting plane is parallel to the HP and perpendicular to the VP. Circle. Circle. Exactly, you will see circle. Okay. Now I'm saying you change the angle. Initially it was parallel.
now angle is changed. Okay, means now it is not parallel to the HP, it is making some angle with HP, maybe theta, maybe 45-30 degree. In that case, will it circle or will be another shape? Stop Circle watching. दिखेगा, oval type. circle. It will not be circle, oval type you will get, na? Yes, sir. Sir. Yes. Yes. So now after cutting, how to draw those diagrams? After cutting, suppose this plane is making 30 degree with horizontal plane. Now you cut, you remove our portion and look on the bottom portion from the top and front. Sir. Okay. Yes. तो ओवल तो जब हम लोग टिल्ट करेंगे तब दिखेगा ना. ओवल तो ऐसे तो सर्कल ही सर दिखेगा. अगर टॉप से देखेंगे तो सर्कल ही दिखेगा ना अपन को. So you are cutting the plane, but you are cutting the solid, but you are not tilting it ना. So we will see a circle only. प्लेन और जब टिल्ट different है, चाहिए जब ये बताओ, ये देखो यहाँ पे देखो, टिल्टेड प्लेन है, ओवल होगा वही. या तो सॉलिड को टिल्ट करो या तो प्लेन को टिल्ट करो. प्लेन को जब टिल्ट कर दोगे तो ऑलरेडी वो तो तुम्हारा Yes, ओवल sir. शेप का ही दिखेगा ना. सर ओवल शेप ही दिखेगा सर. ओवल शेप ही Yes, sir, दिखेगा yes, ना. sir. Okay. क्यों तुमको इसलिए लग रहा है? क्योंकि तुमने वो पोर्शन ही निकाल दिया. वो प्लेन ऐसा कट कर रहा है. सपोज यहाँ पे जो तुम्हारा है, जो भी है, ये सिलेंडर ऐसे, ठीक है. जब तुम इसको ऐसे कट करोगे ना, तो क्या ये पूरा ऐसा सर्कल थोड़ी रहेगा. सर्कल तब जाएगा ना, पूरा सर्कल तब रहेगा क्योंकि तुम्हारा यूनिफॉर्मली कट नहीं है. ये इंक्लिनेशन है बिल्कुल यहाँ प्लेन में. या तो तुम सॉलिड को इंक्लाइन करो या प्लेन को इंक्लाइन करो. दोनों में किस इंक्लाइन करोगे वो सर्कल नहीं मिलेगा तुम्हें. आई होप समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस सर. ये ऑब्वियस है. अभी दिखाएंगे भी और समझ में आ जाएगा. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. मींस इन सीट नंबर 7 there may be any object, any solid object you can cut. It can be pyramid also, okay, prism also. So when you are cutting, in that case, how it will look like when you're looking from the top and front. Okay, so similarly you come here, sheet number 7. See, I am talking about this now. See, where it gone? Okay. And see what, whenever you want to draw na, like anything, whenever you want to show cutted portion na, you will show by shaded area. Okay, that is known as hatching. Okay, hatching portion, hatching. Okay, you can see na, we will shade this area. How we shade this area? That is very simple, that we will do in AutoCAD. Okay, so now we are coming to the first question. See, a pentagonal pyramid. You don't know what is pyramid? Pyramid was a pentagonal pyramid means what? Base is pentagon, right? Yes, sir. Base is pentagonal plane. Side of base 30 mm. Side of base 30 mm. And axis is given 60 mm long. So you come here, you see this. So this is your pentagonal pyramid. You can see. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So this is pentagonal pyramid. One side is given. One side is given. Okay. Now see how it is kept. Axis is 60 mm long. You know the axis, okay? Height of axis from the apex to the base center. Okay, it is apex. It is the height of axis. It rests with its base on HP. Is it clear? It rests with its base on HP. Means pentagonal plane is resting on HP. And one of the edges of its base. There how many edges in pentagonal plane? 5. 5. Okay. Okay, good. So one of those edges is parallel to or what? Base is perpendicular to the VP. So you see here this one. You first to tell me, when you are keeping pentagonal pyramid on the base is resting on HP. When you are looking from the top, what you will see? A pentagon. A pentagon, right? So you can see this is your top view, and you can see now this one side, this AE, what I am drawing. You can see now
it is perpendicular to, it will be perpendicular to the vertical plane, na? Yes, sir. Yes, that is mentioned. That is why it is mentioned in the question. It can be kept any way, any random way. But we have to draw. We have to fix a position. Okay, location. So position we have means orientation we have identified, right? So now there is one pentagonal pyramid. Side of base is given. Height of axis is given, and base is resting on SP. How it is resting? It is resting in such a way that one of its edges is perpendicular to the vertical plane, and it is cut by. Now we are going to cut this plane, and it is cut by, and it is cut by, it is cut by a section plane. It is cut by a section plane perpendicular to the VP. Is it clear? And parallel to HP. There is one plane which is cutting this pentagonal pyramid. Now we know how pyramid is kept in first quadrant. Now there is one sharp plate, rectangular plane you can say, which is going to cut this pyramid, and how it is cutting. That cutting plane is parallel to the HP and perpendicular to the vertical plane, and it is cutting at a point 35 mm above the base. Is it clear? No, sir. Yes. No. See, you assume there is one plane which is rectangular, and it is parallel to horizontal plane, and it is perpendicular to vertical plane, and it is kept at 35 mm above from the XY line, or you can say from the base of that pentagonal pyramid. Now that plane is cutting. Okay, so you come here. You tell me. You just assume this situation. There is one rectangular plane, right? There is one rectangular plane, right? Okay, sir. There is one rectangular plane. Yeah, and see, there is one rectangular plane which is parallel to the SP and perpendicular to the VP. When you are looking this plane from the front, what you will see? A line. Side, sir, side. A One line. of the side. Okay. So yes, line, not side. You can see now. Yes, sir, line. You can see this line. So this line says this is your front view, na? Okay. See, there are different view. When I was discussing now, like there is one cylinder, you are cutting it inclined plane. When you are looking from the front, you will see one. Suppose in this case, I have drawn something here. This one. When I'm telling now, like horizontal plane is parallel, then you will get circle. When you are cutting with inclined plane, in that case also will get circle. But that is your top view. But when you are looking in this way, perpendicular to that direction, which is called true view. Okay. In that case, you will see oval shape. Okay. But when you are looking from the top, you will see one circle because you are getting only points. So point will be on circle only, all the points. Okay. Because that all the points are on perimeter. You come here, see. So this is nothing but plane. Okay. So now is that clear? Now you tell me, after cutting, if I remove the upper portion, what you will see from the top? Triangle. Why you will see triangle? Pentagon. Pentagon, but that will be top portion will be smaller. You can see this one. Smaller pentagon. Yes, smaller one. You will see this one. You can see here. Regular pentagon. Yes, it will be regular only because it is parallel. Plane is parallel. Cutting plane is parallel. Is it clear? And now how you will get this? You see here how you will get this. Intersection say line Yes. So first what we will do, side is given, you know this edge is perpendicular to the VP. Okay. So you can draw this now, you can fix your object. You can draw this, and with the help of this, now you know this angle. So you can draw this side also, you can draw this side also, and this side also, and this side also. Now your original pentagon is ready. Is it clear? Base is clear. Base is ready now. You can make this pentagon now of size 30 mm this way. Yes, sir. Okay. Once you have made this, you bisect all the angle. This angle you can bisect now. Excuse me, sir. Yes.
Sir, we'll draw this on the AutoCAD, right? यस यस, Sir, एक डायग्राम आप ड्रॉ करके दिखा सकते हैं. सब भी दिखाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ ले कैसे करना है, अभी वो भी होगा, ऑटोकैड में होगा, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझ ले तो कैसे होता है, उसके बाद ऑटोकैड में ये होगा, पेंटागन कैसे बनाते हैं, सर्कल कैसे बनाते हैं, दिस इज वेरी सिंपल, ओके, यू विल लर्न दैट, ओके, एवरीथिंग। एंड आई विल आफ्टर दिस क्लास आल्सो आई विल सेंड यू सम वीडियो आल्सो, ओके, यू कैन लर्न थ्रू दिस आल्सो, ओके। एंड Sir, and Friday को जो एग्जाम होगा वो भी AutoCAD पे होगा. ऑटोकैड का कुछ क्वेश्चन पूछेंगे वाइवा में, जो भी तुम अभी सीखोगे, और क्विज होगा एक। सर क्योंकि सर ऑटोकैड पूरा अच्छे से सर ऑटोकैड में मत ना लीजिए सर, हैंड रिटन ही ले लीजिए ना सर, वाइवा ले लीजिएगा। नहीं नहीं, ऑटोकैड में तुमको बनाना नहीं है, ठीक है, ओके। जस्ट कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ऑटोकैड से रिलेटेड। और सर बनाने वाला हैंड रिटन ही रहेगा, हैंड रिटन पेपर। हाँ, मतलब तुम आओगे, स्क्रीन तुम पेपर पे बना के मुझे शो करोगे वीडियो में, ठीक है। ओके सर, अच्छा सर। ओके, वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब वीडियो ऑन करोगे, वीडियो ऑन रहेगा, बिल्कुल एक प्रॉब्लम देंगे, ठीक है, उस प्रॉब्लम को तुम पेपर पे बनाओगे, उसको शो करोगे वीडियो में, ठीक है। अच्छा सर, ऑटोकैड में नहीं बनाना है मतलब? नहीं, ऑटोकैड में नहीं हो पाएगा, टाइम बहुत कम होगा ना, ये क्योंकि सर standard सिलेबस फिर बहुत ये रहेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है ना, पेंटागन बन गया, फिर एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, इतना क्लियर हो गया, सारे एंगल को, देयर सर वो आर एक 5 एंगल। बता सकते हो पेंटागन वाला? क्या क्या सर वो जो पेंटागन को बनाने के लिए जो दोबारा थोड़ा बता सकते हैं क्या? पेंटागन तो बहुत पहले बना चुके कितनी बार ना, देखो। नहीं सर, जो एंगल के बारे में बोले वो वाला। अरे ये पेंटागन क्या है, ये तुम्हें पता है, ये साइड ऐसे क्यों है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वन ऑफ इट्स एजेस इज परपेंडिकुलर वीपी, पहले ये फिक्स हो गया, इसका साइज दिया हुआ है, अगर ये साइज दिया हुआ है तो ये एंगल तुमको पता है ना कितना होता है, कितना होता है पेंटागन में? 108 होता है ना, 108. हाँ, 108 है, तो उसको एंगल बना सकते हो। और एज पता है तुमको, लाइक यू नो द लेंथ ऑफ दैट एज, इतना यहाँ पे क्या करोगे, आर्क लोगे, और वहां पे तुम्हें आर्क लेना नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक तुम्हारा बन जाता है, कैसे बनेगा वो देख लेना तुम, ठीक है, हो जाएगा, अभी मैम उसको एक्सप्लेन करेंगी क्लास के बाद। तो ये हो गया, ठीक। अभी पेंटागन तुम्हारा बन गया, उसके बाद क्या करना है, सारे एंगल को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। इज इट क्लियर? सारे एंगल को बाइसेक्ट करो। यस सर। ठीक है, अगर सारे एंगल को बाइसेक्ट करोगे तो क्या होगा, ये जाके एक कॉमन पॉइंट पे मीट करेगा, जो सेंट्रॉइड होगा इस ऑब्जेक्ट का। यस सर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करो, ये तुम्हारा इस कॉर्नर को ऊपर प्रोजेक्ट करो, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट मिलेगा, इस कॉर्नर को यहां पे प्रोजेक्ट करो, यहां पे एक पॉइंट मिलेगा, और जो सेंटर वाला लाइन है यहाँ पे जो मिल रहा था ना सारा एंगल का बाइसेक्ट, इसको भी ऊपर प्रोजेक्ट करो, पूरा ऊपर तक जाना है, ठीक है, पूरा ऊपर तक जाओ और कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा। अब हाइट कितने दिया एक्सिस का, कितना दिया, 60, तो यहां से क्या करते हो, 60 पे जा सकते हो, 60 लेंथ ले सकते हो, ठीक है। 60 का तुम्हारा अगर ये हो जाएगा यहाँ पे, तो अब क्या करना है, इस वाले से इसको ज्वाइन कर देना है, इस वाले से इसको ज्वाइन कर देना है। पहले हमें ये सीखना है कि मैनुअली इसको कैसे करना है, उसके बाद ऑटोकैड में करोगे तो समझ में आएगा। जस्ट मतलब ऐसे हमें इमेजिन करना, अगर इसे मैनुअली कर रहे तो कैसे करेंगे, तो ऑटोकैड में वो टूल्स का यूज करके कैसे करेंगे, तब वहां क्लियरिटी आएगा। So that's why you need to learn first this way. Are you getting my point? Yes. Yes. Okay, good. So let me erase so that it will be clear. So now ये हमारा पेंटागन बन गया, ठीक है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब ये बताओ, एक हमें लाइन ड्रॉ करना है जो इस वाले डी कॉर्नर डी यू कैन सी ना, रेड कलर डी पॉइंट इज रिटन, एंड कॉर्नर बी देख सकते हो ना, 2 पॉइंट मार्क किए हैं। Yes. अच्छी बताओ, अगर एक लाइन पास कर रहे हैं, एक लाइन पास कर रहे हैं डी से, तो वो क्या बी से भी होके पास हो, बी से भी होके जाएगा क्या, अगर डी से पास हो, समझ में आ रहा है? अगर वो लाइन पैरेलल है एई के पैरेलल लाइन है, और जो लाइन डी से जा रहा है वो बी से भी जाएगा क्या?
नहीं क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं? इफ दे आर पैरेलल देन जाएगा। हाँ, तो वही तो बोले सर। अरे वो पैरेलल अगर हम ना बोले तो जाना ही जाना, उसको पैरेलल होना ही पड़ेगा। रेगुलर पेंटागन है ना। अगर ये बताओ कुछ ऐसे एक पेंटागन है, ठीक है, ये ऐसे थोड़ा बड़ा करते समझ में आएगा, ठीक है। अभी बताओ ये और ये दोनों एक ही लाइन में तो होंगे ना। हाँ सर। यस सर। अगर ऐसे एक लाइन पास Yes, कर रहा है तो अगर इससे जा रहा है तो इससे भी तो जाएगा ना। वही बोल, सेम थिंग। Okay, so means the line which will pass from point D, it will also pass through point B. Is it clear? Yes, sir. अब ये बताओ ये जो लाइन पास हो रहा है D और B से, जो सेंटर वाले से लाइन ऊपर लेगा क्या उससे थोड़ा दूर पे होगा ना? ये क्लियर है ना? अब जैसे जो भी थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। अब जो लाइन यहां से पास कर रहा है और सेंट्रॉइड यहां पे आ रहा था, दोनों के बीच में डिफरेंस है ना। ये तो तुम्हारा एक्सिस वाला लाइन हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये हमको ये वाला लाइन पता है, ठीक है, ये बेस का ये वाला लाइन पता है। अब जब हम लाइन पास कर रहे हैं डी और बी से, तो वो कहीं, लेट मी इरेज दिस, वो कहीं जाके यहां पे कट कर रहा है वो लाइन। क्लियर है? बेस यस सर। अब इस लाइन को क्या करेंगे, हम एपेक्स से मिलाएंगे। इतना क्लियर है? सर ये जो लाइन पास हुआ डी और बी से, एक ही लाइन है, यहां पे जाके कट किया इस पॉइंट पे, ठीक है। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे, हम इस एपेक्स से ज्वाइन करेंगे। यस इज इट क्लियर? अगर वो ज्वाइन करेंगे, अब देखो, अब ये बताओ, ये हमारे पास, अब ये लाइन याद रखना है, एक लाइन हमारे यहाँ पे है, ठीक है। और अच्छा ये लाइन कौन सा है बताओ जरा, ये लाइन इसके जो बगल में है, ये जो एपेक्स से ज्वाइन हो रहा है, सेंट्रॉइड से वो जो सेंट्रॉइड से जा रहा है। यस गुड। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, जो प्लेन था हमारा ये कट कर रहा है सॉलिड को, ठीक है। यहाँ पे देखना कहाँ कहाँ कट कर रहा है वो देखना है थोड़ा। एक ये वाला पॉइंट 1 है, यहाँ पे कट कर रहा है, हेलो, यस जो स्लैंट है, और जो सेंट्रॉइड से पास कर रहा है 2, उस पे भी कट कर रहा है, ठीक है। यस और जो उसके बगल में इस पॉइंट से और डी से और बी से होके गया है, क्या वहां पे भी कट करेगा? एक पॉइंट वहां पे भी होगा। यस सर और जो पॉइंट सी से जा रहा है, ये पॉइंट सी, ये देखो, तो ये मतलब ये वाला जो एज है, ये वाला एज यहाँ पे कट कर रहा है क्या इसको? यस तो टोटल कितना पॉइंट, 4 पॉइंट मिला। जस्ट वेट, अगर ये 4 पॉइंट मिल जाता है, अच्छे बताओ, आप तो ऑलरेडी हम इसको सारा ज्वाइन कर रखे, एंगल बाइसेक्टर है ना मेरे पास सारा, पहले ऑलरेडी ड्रॉ है ना वहां पे, ठीक है। Yes, sir. अगर वो ड्रॉ है तो पॉइंट 1 पे जहां कट किया है ना, ये इसको डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करो, ठीक है। अब बताओ, जो ये एंगल का बाइसेक्टर है उसको एक जगह कट करेगा, ये पॉइंट लाइन जो ऊपर से आ रहा है। यस सर सिमिलरली जो ये वाला एंगल बाइसेक्टर है उसको यहाँ पे कट करेगा यस ना? सर मतलब Yes. हमको दो पॉइंट मिल गया ऐसे, ध्यान देना, ठीक है। अब ये बताओ, जो ये वाला लाइन है, जो ये वाला स्लैंट एज है, ठीक है, इस पे ये कट कर रहा है, इसको अगर डाउनवर्ड लाएंगे तो क्या इस एंगल के बाइसेक्टर को कहीं ना कहीं कट करेगा यहाँ पे आके? Yes, sir. यस सर ठीक है, यहाँ पे मिल गया, मतलब कहीं न कहीं तुम्हारा यहाँ कहीं सपोज कट करता है भाई। अब Yes. जो लाइन यहां से पास हुआ था डी से एंड बी से, क्लियर, और यहाँ पे मिला और इसको हम एपेक्स से ज्वाइन किए, तो ये जो लाइन जा रहा है हमारा, ये वाला लाइन, क्या इसको भी पॉइंट 3 पे जो कट किया है, अगर उसको अब नीचे लाते हैं, डाउनवर्ड लाना है बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो भी देखो कहीं, देखो थोड़ा गलत चलेगा, वेट, देखो ऐसे फिर से करते हैं, ये जो लाइन है जो एपेक्स से ज्वाइन हो रहा है जाके ऐसे, तो उसको भी पॉइंट 3 पे कट किया है, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। हाँ, अब
पॉइंट 3 से जब हम वर्टिकली डाउनवर्ड आएंगे ऐसे, तो ये जाके कहीं ना कहीं एक इस पे कट करेगा इस एंगल के बाइसेक्टर को, और सिमिलरली यहाँ पे आके इसको कट करेगा इस एंगल के बाइसेक्टर को। क्या हमारा यहाँ 2 पॉइंट मिलेगा? यस सर। 2 पॉइंट हमको, तो मतलब टोटल हमें 2 पॉइंट तो यहाँ मिल गया पॉइंट 1 से, पॉइंट 3 से भी हमको 2 पॉइंट मिल गया ऐसे कुछ, और पॉइंट 4 से 1 पॉइंट मिल गया। अगर इसको ज्वाइन कर देंगे तो क्या हमें आफ्टर कटिंग बाई कटिंग प्लेन टॉप से क्या दिखेगा हमें पता चल जाएगा क्या? वो से यही तो है वो शेडेड एरिया। बात समझ में आया कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? यस सर। So plus this is not tough, okay, means easy है, but you have to be focused and थोड़ा सा विजुलाइजेशन होना चाहिए। सर पॉइंट ए से कैसे मिलेगा सर 2 पॉइंट? पॉइंट ए से कैसे मिलेगा सर मतलब? पॉइंट 1 से जो है कटिंग, देखो इस एंगल का बाइसेक्टर है हमारे पास ये वाला, ओके सर, और इस एंगल का और बाइसेक्टर है। यस तो सर, ये जो 1 से आ रहा है इसको ही बाइसेक्ट जो कर रहा है उसको भी कट कर रहा है यहाँ पे, और इससे जो लाइन जा रहा है उसको भी कट कर रहा है। ओके सर। समझ में आया कैसे हो रहा है? अब ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन और आते देखते हैं थोड़ा, ठीक है, सिंपल है वो। क्वेश्चन नंबर 3, 1 and 3, 1 तो हो गया, 3 देखते हैं। 3 क्या है? ए सिलेंडर, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? सिलेंडर है ना? यस सर। सो ए सिलेंडर हैविंग बेस diameter 45 mm, ठीक है, there is one cylinder, base diameter is 45 mm and height is given 55 mm. Is that clear? Parameter of cylinder is given and this cylinder is resting on HP. This cylinder is resting on what? Horizontal plane. Horizontal, right? On its base a section plane. A section plane means you can say a rectangular plane which is going to cut this cylinder. A section plane which is perpendicular to the horizontal plane, and inclined to VP 845 degree. Means you can imagine here. I have shown you this one, na? Okay, but now you think there is one plane which can cut like this. It is vertical to horizontal plane. Is it clear? Hello? यस सर। अगर ये बताओ पूरा बिल्कुल परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल प्लेन के और इसको बीच से कट कर दे, क्या बिल्कुल 2 पार्ट में हो जाएगा क्या वो? यस सर। ओके, गुड। अब ऐसे ही जूम करना, अभी तो ये परपेंडिकुलर दिखा रहा है, ऐसे ही कट करेगा। वो एंगल क्या लिया वो देखते हैं हम लोग। सिलेंड्रिकल प्लेन, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ताकि फिर से क्लियरिटी आ जाए। ए सिलेंडर हैविंग बेस 45 mm and height 55 mm is resting on HP on its base, a section plane perpendicular to horizontal plane and देखो क्या बोल रहा है, perpendicular to horizontal plane and inclined to VP 845 degree. Can you imagine this? यस सर। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये तुम्हारा प्लेन है जो कट कर रहा है। ये लाइन देख रहे हो ना? अगर ये एक कोई भी प्लेन है और वो एचपी के परपेंडिकुलर है, अगर उसको टॉप से देखो तो क्या दिखाई देगा? एक लाइन दिखाई देगा ना? Yes, sir. कोई भी रेक्टेंगुलर प्लेन है और एचपी के परपेंडिकुलर है, अगर उसको टॉप से देखो तो लाइन दिखाई देगा। अच्छी बताओ, ये सिलेंडर का बेस जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखे हैं, ठीक है? You have kept this on horizontal plane. Now in this case you are looking from the top. अभी कट नहीं किए हैं, कट करने के पहले का बात कर रहे हैं। अगर टॉप से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? सर्कल। और फ्रंट से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? रेक्टेंगल। ये तो ऑलरेडी ड्रॉ है यहाँ पे, वो तुम देख सकते हो। अब जो प्लेन कट कर रहा है इस सिलेंडर को, ये प्लेन है। ये टॉप व्यू को देखो कैसे दिखेगा वो, ये प्लेन इसको कट कर रहा है।
ये एंगल 45 है, मतलब वर्टिकल प्लेन से 45 क्या? अगर XY से 45 बना रहा है तो ये टॉप व्यू वाला नीचे है, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये वर्टिकल प्लेन हो गया। अगर ये 45 एंगल है तो क्या वर्टिकल प्लेन से 45 बना रहा है अगर एक्चुअल 3D में देखोगे तो? Yes, sir. आर यू गेटिंग दिस ना? सो दिस इज द एक्चुअल केस। अभी बताओ, कट करके ये वाला पोर्शन हमको क्या करना है? निकाल देना है। बिल्कुल, कट करके इसको अलग कर दो। अब अलग कर दोगे तो क्या ये शेडेड एरिया दिखेगा क्या? ये कट वाला पोर्शन बिल्कुल रेक्टेंगल दिखेगा ना जो कट हुआ है, अगर फ्रंट से देखोगे तो। फ्रंट से तो रेक्टेंगल दिखेगा। Yes. अब ये बताओ, अब इसको कैसे ड्रॉ करना है? पहले मैनुअली कैसे करना है ये समझो, उसके बाद तुम वहां करोगे तो क्लियरली आएगा। सर क्वेश्चन दिखाइए एक बार। क्वेश्चन देखो, फिर से देखो। ए सिलेंडर, फिर से पढ़ते हैं। देखो, ए सिलेंडर है, उसका बेस दिया हुआ 45, हाइट ऑफ एक्सिस इज गिवन 55 mm, इट इज रेस्टिंग ऑन HP। ठीक है, एक सेक्शन प्लेन है जो इसको कट कर रहा है। वो प्लेन कैसे रखा हुआ है? व्हाट इज ओरिएंटेशन? इट इज परपेंडिकुलर टू HP एंड इंक्लाइंड टू VP एट 45 डिग्री एंड इट कट 10 mm अवे। अभी बताओ, ये नहीं पढ़े थे ये तो लाइन अगर कट 45 डिग्री पे तो बहुत सारा लाइन हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है 45 डिग्री पे इसके पैरेलल कोई लाइन हो। Yes, sir. Yes, sir. तो हमें फिक्स करना वो लाइन कौन सा है। तो वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कट इट 10 mm अवे फ्रॉम द एक्सिस। इज इट क्लियर? सम ऑफ यू आर मेकिंग नॉइज। सिलेंडर के एक्सिस से। जस्ट वेट, सम ऑफ यू आर मेकिंग नॉइज, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो हाँ, एक सिलेंडर का जो एक्सिस है उससे 10 mm अवे है। सिलेंडर के एक्सिस से 10 mm अवे का मींस क्या हुआ? मतलब देखो, जो ये सिलेंडर का सेंटर पॉइंट है ना, उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, विच इज मेकिंग 45 डिग्री। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है? अभी वो भूल जाओ क्या 45 लिखा। Yes, sir. रेड कलर का जो रुको पहले इरेज करने दो। ये जो 45 रेड कलर से लिखा भूल जाओ। सिलेंडर का तुमको सेंटर पॉइंट पता है, इससे एक लाइन ड्रॉ करना है जो हमारा XY लाइन से 45 डिग्री एंगल बनाएगा। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो प्लेन कट कर रहा है ना, वो एक्सिस से 10 mm अवे है। अगर एक प्लेन बोल रहा है कि एक्सिस से, मतलब ये बोल रहा है कि जो सेंटर से जो प्लेन पास कर रहा है ना, उससे इक्वी डिस्टेंस है 10 mm का। तो अब क्या करेंगे, इससे 10 mm अवे एक हमारा प्लेन होगा। ठीक है, और वो प्लेन क्या होगा? वो प्लेन ऐसे कट कर रहा है। अगर ये तुमको सपोज करो तुमको मैनुअली करना है अगर, तो ये तुम ड्रॉ कर सकते हो ना सेंटर से 45 डिग्री, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? Yes, sir. और उसी के पैरेलल तुम 10 mm का डिस्टेंस लेके एक प्लेन और ड्रॉ कर सकते हो, कर सकते हो ना? जी। बस अगर ये पता चल गया, अब देखो ये कहीं ना कहीं यहां पे कट करेगा। एक देखो, ये जो है यहां पे कहीं ना कहीं कट करेगा और इसको यहां कट करेगा, और ये डायमेट्रिकली ये बीच वाला पॉइंट नहीं है इसके। सपोज करो ये सिलेंडर है ना, ऐसे अगर फ्रंट व्यू ये है तो ये वाला जो पॉइंट है अगर कहीं यहाँ पे है, आ रहा ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा हो, इसको ऊपर लेकर प्रोजेक्ट कर रहा है ना, ऐसे देख रहे हो ना, यू कैन सी ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तुम्हारा ऐसे प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, एक ये मिल गया, और यही लाइन जो जाके यहाँ भी पेरीमीटर पे कट कर रहा है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं कट कर रहा, वहां थोड़ा स्पेस कम है इसलिए ऐसा लग रहा है। ये कहीं ना कहीं यहाँ कट कर रहा है, जब ड्रॉ करोगे तो आएगा समझ में। ठीक है, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, तो कट करने के बाद तुम्हारा ये शेडेड एरिया दिखेगा, वही हमें कर देना साइड। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट इन दिस? ये तो बहुत सिंपल है। Yes, sir. ठीक है, तो इसको देखेंगे, ट्राई करेंगे ऑटोकैड में आज कितना हो जाता है। ओके, सो आज यही दोनों करते हैं ऑटोकैड में। संडे को क्या करेंगे ना, संडे को आई एम थिंकिंग अबाउट दिस। सी सर कल भी क्लास है। कल भी क्लास है। कल इसका क्लास है? सर फ्राइडे का कल तो एग्जाम है ना। फ्राइडे का टाइम टेबल फॉलो होगा फ्राइडे टाइम टेबल है। अच्छा, फ्राइडे का टाइम टेबल है कल? हाँ, और शायद वो एग्जाम तो नहीं है उस टाइम? सर एग्जाम है कल। एग्जाम कौन सा 7 PM से 7 हाँ, बजे। तो शाम में आएगा।
नहीं नहीं ट्यूटर से पूछ के बता देंगे आपको। नहीं फिक्स करना है, क्योंकि हमारा कल भी एक और क्लास है, वो दोनों कल जो थर्सडे का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास है उनका भी क्लास लेना है, एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। तो ये कब रखा जाए, संडे को रखा जाए या सैटरडे को रखा जाए, बताओ। सर अगर कल हो जाएगा तो फिर संडे को तो नहीं होगा ना सर कल तो फ्राइडे टाइम टेबल ऐसा है। अगर कल फ्राइडे टाइम टेबल है, ठीक है, यस सर, तो तुम लोगों का क्लास होगा, ठीक है। तो फिर नहीं संडे तो को नहीं होगा ना सर? नहीं, संडे को फिर नहीं होगा, ओके ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अब ये देखो क्या है, projection of surfaces. Now this is also typing mistake. You go to the sheet number 8 in PDF file. You will see development of surfaces. Can you see now? Yes, sir. अब यहाँ पे करना क्या है हमको, देखो यहाँ पे करना क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू लाइक दिस। सपोज करो एक सिलेंडर था, ठीक है, तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, उसको अगर किसी भी पेरीमीटर के एक पॉइंट पे कट दे देते हो, कट करके उसको ओपन करते हो तो क्या दिखाई देगा, किसी भी सॉलिड को कट करके ओपन करना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एक बार और बोलिए ना सर। थोड़ा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। Just wait, एक मिनट वेट करो थोड़ा सा। यहाँ पे ये समझ सकते हो कि सपोज एक पेपर है तुम्हारे पास, 2D पेपर है, ये तुम्हारा पेपर होता है ना, जो A4 पेपर होता है, समझ रहे हो ना, अभी A4 है। अच्छा बताओ, इसको अगर सिलेंडर बनाना तो क्या करोगे, A4 पेपर को उसको रोल करोगे क्या? यस सर। यस सर। रोल कर दिए, ठीक है। अब रोल करके तुम अंदर कुछ फिल भी कर दिए, तो क्या सिलेंडर सॉलिड हो गया हो? यस सर। यस सर। हो गया ना, ठीक है। अब वही सिलेंडर को बोल रहे हैं तुमको ओपन करना है और उसको प्लेन बना देना है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस मतलब क्या होता है कि जो भी सॉलिड है ना, उसका जो सरफेस है, जस्ट उसको कट कर रहे हैं कहीं से और ओपन कर रहे हैं। अगर सिलेंडर होगा उसको कट करेंगे तो एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी समझ में आया कुछ? यस सर। यस सर। किसको समझ में नहीं आया? अभी और भी लोग हैं जिसको समझ में नहीं आया। सर एक बार और। let me on my video and I will show you through a video, right? Let me do that, and that will be better. Just wait, I will switch on my video. I'm sharing this, stopping, I will stop the sharing, okay? Okay, you can see my video? No sir. Okay, wait. Can you see it now? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Let me pin it. Okay, you can see now. Here it is very cold, so I have. See, you can see this is a plane, right? You can see Yes, now. sir. Yes, sir. Now first you assume this is a cylinder. Why I'm taking cylinder? Because cylinder is very simple object, right? So assume this is a cylinder, right? Solid cylinder. Now development of surfaces means I'm saying, see, these surfaces now, outer surface, are known as lateral surfaces. It can Yes, be lateral surfaces. Suppose I'm telling this is a pentagonal prism. What do you understand by this? Pentagonal prism means both will have this solid above, means this bottom and top will have identical bases, means pentagon. Is it clear?
Just wait. Let me clear it properly. Yes, now it will be more visible. Okay. So yes, so I am telling like one pentagonal here, one pentagon here. Okay, so that is pentagonal prism. And whatever, if you are having, this is cylinder, so you are having circular face. You can see na circular face. Hello. Yes, sir. If this is your cylinder, then this is circular. When it is pentagonal prism, in that case, which surfaces you are having? Rectangle. Rectangle, right? Means what I am doing, see here, I am just cutting here, okay? I am giving cut here and I am opening it. Means I am opening the parameter. Is it clear? Means it was cylinder or solid object. When I have cut and I opening the lateral surface, means whatever outer surface you are seeing now, that is known as lateral surfaces. And when I am opening the lateral surfaces, you will see one rectangle, right? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So similarly, suppose you are having one square pyramid. Square pyramid, what is a square pyramid? So the base is square and Base is square. Base is square and some height of it will be there. ठीक है, अब देखो जो भी स्क्वायर है उसका सीजी होगा, ठीक है, इज क्लियर? और जो भी स्क्वायर है, सपोज करिए स्क्वायर है, उसका एक सीजी होगा. सीजी से क्या होगा? एक लाइन पास करो जो उसका एक्सिस होता है. समझ में आ रहा है? yes, sir. उसका अगर कुछ हाइट दिया हुआ है, सपोज ये हाइट है, ठीक है, और इसका ये एपेक्स पॉइंट हो गया. इस एपेक्स पॉइंट को क्या करेंगे? ये चारों कॉर्नर है ना, कॉर्नर नंबर 1, कॉर्नर नंबर 2, कॉर्नर नंबर 3 एंड कॉर्नर नंबर 4, ये चारों कॉर्नर को क्या करेंगे? इस एपेक्स पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे. ये समझ में आ रहा है? Yes. तो हमारा क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर पिरामिड बन जाएगा. अभी बताओ, यहाँ पे जो एक इंक्लाइंड सरफेस होगा, वो सरफेस क्या होगा? ट्रायंगुलर होगा या रेक्टेंगल होगा? ट्रायंगुलर होगा. ठीक है. अब हम क्या करना चाहते हैं ना, इसको ओपन करना चाहते हैं सारे सरफेस को. अब ये जो आउटर ट्रायंगुलर सरफेस अभी देखे, इन केस ऑफ पेंटागोनल पिरामिड इट वाज रेक्टेंगुलर. नाउ हियर इट इज व्हाट? हियर इट इज व्हाट? हियर इट इज ट्रायंगुलर. अब जो भी आउटर सरफेस या लैटरल सरफेस है, इसको ओपन करने के बाद हमें ये कैसे दिखेगा? बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो वो हमें करना है. अब वहां पे अगर आप स्लाइड में दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलते हैं वहां पे. I think it is clear now. Now you can visualize. Okay. Yes, Let me come. It is very difficult in online class. ये ऑफलाइन क्लास में इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, जल्दी जल्दी समझ जाते हैं बच्चे. हाँ सर. Yes, sir. ऑनलाइन बहुत दिक्कत है. अरे क्या करोगे, सबको दिक्कत है. वी आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम. यस सर, ऑटोकैड भी सही से समझ में नहीं आ रहा. क्या करोगे? चलो ऑटोकैड दिक्कत नहीं. ऑटोकैड तो तुम इतना तुमको बता दिया जाएगा, मतलब समझ जाओगे कि क्या होता है, और उसके बाद तुम खुद से मतलब बहुत सारा प्रैक्टिस करके फ्यूचर में सीख सकते हो. और हम कुछ वीडियोस भी आज तुम्हें गूगल क्लास में भेज देंगे, उसको भी फॉलो कर सकते हो. ठीक है जी सर. सर ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एवरी सेमेस्टर में होता है? नहीं, केवल एक ही सेमेस्टर में होता है, इसी सेमेस्टर में. This is course for all the branches across. This course means this subject is taught across all the branches because this is elementary subject. ये भी लग रहा है कि तुमको मतलब ये ऐसा नहीं है, बट जब भी तुम क्या बोलते हैं कि कोई भी चीज पढ़ोगे ना, लाइक कोई भी सब्जेक्ट अपना इंजीनियरिंग का, तुम लोगों का क्या है? कंप्यूटर साइंस है ना? Yes, sir. हो सकता है कोई कंप्यूटर का हो, कोई बहुत सारा तुम्हारा वर्टिकल्स होगा. ठीक है, कोई मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो. तो जो भी तुम कोई भी ऑब्जेक्ट डिजाइन करने जा रहे हो, कोई भी अपना आइडिया देने जा रहे हो, तो उस ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से देखना होता है. ठीक है, अगर कोई कंप्यूटर का कोई पार्ट देख रहे हो, ठीक है, अगर जो भी है इंजीनियर, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कोई भी पार्ट देख रहे हो, ठीक है, तो उस पार्ट को देखेंगे कैसे कैसे क्या दिखेगा. ठीक है, सपोज एक प्रोजेक्टर है,
अगर वो प्रोजेक्टर का अंदर का पूरा हम देखना चाहते हैं कौन का कितना कितना पार्ट लगा, उसका साइज क्या है, सर्कुलर क्या है, तो कैसे उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो इसलिए ये कोर्स सबके लिए एलिमेंट्री है, ये सबको जरूरत पड़ता है। ठीक है सर यस यस सर आप जो एक टेस्ट किए थे ना इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, हाँ हाँ सर उसका थर्ड क्वेश्चन थोड़ा समझा सकते हैं क्या? वो समझ में नहीं आया था। चलो समझा देंगे, टाइम मिलेगा उसको भी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है पहले हम लोग कंप्लीट कर लें। पता ही नहीं था हमको, मतलब वो कैसे करते हैं वो थर्ड वाला। चलो ठीक है उसको बता देंगे, टाइम मिलेगा तो उसको भी बता देंगे, बट एटलीस्ट पहले ये कंप्लीट हो जाना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, तो पहले हमारा फोकस है इन दोनों कंप्लीट करना। ठीक है उसको भी टाइम मिलेगा तो हम मीटिंग करके बता देंगे उसको। ठीक है एंड ओके आई हैव सेड, कैन यू सी नाउ? यस गुड। अब देखो इसको करना कैसे, देख सकते हो ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या देख रहे हो? एक हेक्सागोनल प्रिज्म है, ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3 ना? देयर इज ए हेक्सागोनल प्रिज्म। हेक्सागोनल प्रिज्म पता है क्या होता है ना? दोनों का बेस क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। Yes, sir. Age is given 20 mm, height of axis is given 50 mm long, and it is resting on HP. Base is resting on HP, तो simple है, ठीक है। Such that one of its rectangular face is parallel to VP. अब जैसे हेक्सागोनल प्रिज्म है तो उसका जितनी चारों तरफ जो भी जो सरफेसेस है, so one जो भी सरफेस, क्या तुम्हें रेक्टेंगल सरफेस मिलेगा नहीं मिलेगा वहां पे अगर हेक्सागोनल है? Yes, sir. अगर रेक्टेंगुलर सरफेस मिलेगा तो ये बोल रहा है कि हमको ऐसे रखना है, इस प्लेन को ऐसे ओरिएंट करना है, सच दैट वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस इज पैरेलल टू VP। समझ में आ रहा है ना कैसे रखना है? ओके गुड। देखो बनाते हो या नहीं बनाते हो अलग बात है, बट क्वेश्चन पढ़ के उसको विजुलाइज कर रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है अब जो लोग बिल्कुल वीडियो ऐसे ही ऑन करके, मतलब बस जूम ज्वाइन करके या मीट ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, या कहीं से किसी और का देख के करके सबमिट कर देंगे, वो नहीं सीखेंगे। एटलीस्ट यू बी इन्वॉल्व हियर। ओके मार्क जो भी आएगा टेस्ट में, जो भी बोलोगे, जैसा भी होगा अलग, बट यहाँ पे अगर इन्वॉल्व हो, सो दैट इज योर पोटेंशियल। क्या समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो, दैट इज योर एक्चुअल पोटेंशियल। ठीक है सो इट इज कट बाय ए सेक्शन प्लेन। ये तो समझ में आ गया। हेक्सागोनल प्रिज्म है, उसका बेस दिया है 20 mm, हाइट दिया है, एंड HP पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है और रेस्ट करने के बाद सच दैट वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस इज पैरेलल टू VP, भी क्लियर है। इट इज कट बाय ए सेक्शन प्लेन, वही रेक्टेंगुलर प्लेन होगा जिसे कट करेंगे, विच इज परपेंडिकुलर टू द VP। एक प्लेन है जो VP के परपेंडिकुलर है, एंड इट इज इंक्लाइंड टू 45 डिग्री टू द HP and passing through the right side corner of the top prism, develop the lateral surface of the truncated prism. Truncated मतलब आफ्टर कटिंग जो भी शेप बचा है ना, जो भी प्रिज्म बचा उसको ट्रंकेटेड प्रिज्म कहते हैं। पहले एक प्रिज्म था मेरे पास, उसको मैंने किसी तरह से कट कर दिया, टॉप पोर्शन रिमूव कर दिया, और जो भी पोर्शन बचा हुआ है उसको ट्रंकेटेड प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है अभी आ जाओ यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन था हमारा, देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन सी ना। अब देखो क्या है, अच्छा ये बताओ, अगर हेक्सागोनल प्रिज्म है, ये देख सकते हो ना, वन रेक्टेंगुलर फेस इज पैरेलल टू द VP। ये समझ आ गया ना एक क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ है? यस सर। अच्छा ये कंडीशन में आ गया। अभी बताओ, अभी कोई कट नहीं कर रहे हैं, अगर जैसे रखा हुआ अगर इस तरह रखते हैं तो टॉप से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? हेक्सागन दिखाई देगा। तो हेक्सागन हमारा ड्रॉ है यहाँ पे ऑलरेडी। और अगर फ्रंट से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? रेक्टेंगल भी ड्रॉ हुआ है। बाकी जो भी डॉटेड लाइन है ये सब भूल जाओ, मतलब एक रेक्टेंगल तुम्हें दिखाई देगा। अच्छा बताओ, अगर क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, सॉल्व करना, तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? हेक्सागोनल या रेक्टेंगल? रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करोगे? पहले हेक्सागन ड्रॉ करेंगे ना, ये हमें थोड़ी पता है। क्या ये पता है क्या? ये लेंथ पता है क्या हमको? पहले से नहीं पता है ना, हमें तो ये पता है ना, तो जो पता है उसको स्टार्ट करेंगे पहले। तो ये हेक्सागन बन जाएगा, इसको एक पैरेलल रख लो पहले वर्टिकल के, और बाकी ये एंगल जानते हो कैसे क्या करना है। ठीक है ये ड्रॉ हो गया तुम्हारा। ठीक है अभी सर उसका लेंथ कितना था? लेंथ दिया है ना 20 या 30 जो भी दिया होगा। ओके सर। लेंथ 20 mm,
20 है। mm. अब ये तुम्हारा पहले इसको ड्रॉ कर लिया तुमने, ऐसे रख लिया। अब ये बोल रहा है कि एक प्लेन है जो इट इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन। अच्छा बताओ, कोई प्लेन है परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन है, अगर उसको फ्रंट से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? प्लेन दिखाई देगा कि लाइन दिखाई देगा? ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये क्या, ये तुम्हारा वर्टिकल प्लेन है ना, और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है। यस सर। अब यही तुम्हारा लाइन है जो कट कर रहा है, ए प्लेन, मतलब यही लाइन एक प्लेन है, ठीक है। अगर ये लाइन प्लेन है तो अब ये कैसे कट कर रहा है? देखो, ये बोल रहा है कि ये जो राइट कॉर्नर है ना, राइट कॉर्नर, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आ जाओ। सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वीपी इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू द एचपी, मतलब ये प्लेन 45 डिग्री एचपी से लाई कर रहा है, एंड पासिंग थ्रू द राइट साइड कॉर्नर ऑफ द टॉप ऑफ द प्रिज्म। अब जो टॉप ऑफ द प्रिज्म है, इसको जब ड्रॉ करोगे तो इस वाले व्यू में ना, ये जो राइट कॉर्नर है ये वाला, देख रहे हो ना? यस सर। अब इससे प्लेन पास कर रहा है, प्लेन पास कर रहा है मतलब लाइन पास कर रहा है इन टॉप व्यू, इन फ्रंट व्यू। Yes, sir. तो इससे एक लाइन पास करना है जो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा इस एक्स वाई लाइन से। कर सकते हो ना? अगर मैनुअली करना हो तो पूछना पहले। यस सर। ये हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया, अब फिर से लेट मी इरेज दिस। ओके, हाँ अब क्लियर है। ये हमारा लाइन भी ड्रॉ हो गया, जो हमारा कटिंग प्लेन वो भी ड्रॉ हो गया। अच्छा बताओ, एक सर्कल है, सर्कल का डायमीटर रेडियस आर है, ठीक है, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा? 2 पाई आर। अगर ये बताओ, ये हेक्सागन है, ये हेक्सागन है, और एक का साइड दिया 20, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 20 into 6 20 into 6 कितना होता है? 120। 120। मतलब जब इसको ओपन करेंगे तो क्या 120 का लेंथ ओपन होगा क्या, जो सरफेस का होगा? यस सर। समझ में आ गया ना? अब देखो करना क्या है, तुम्हारा कटिंग लाइन हो गया, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को ऊपर प्रोजेक्ट करो, ऐसे जाएगा, देखो जैसा जा रहा है ना ऊपर वही लाइन, फिर जो लाइन यहां से पास होगा यहां से भी पास होगा। जस्ट वेट, थोड़ा नीचे जा नहीं रहा क्योंकि वहां पे ड्राइंग टूल है तो नहीं जा रहा, ठीक है। समझ रहे हो ना? जो जस्ट इसके नीचे पॉइंट है ये वाला। हेलो? यस सर। यस Yes, sir. ठीक है। अब एक लाइन ए भी पास हुआ, तुम्हारा ऐसे जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहां से भी देखो 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये है और जस्ट इसके नीचे जो जा रहा हो यहाँ पे, इसके नीचे ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी लाइन ऊपर प्रोजेक्ट करो, ठीक है। एक यहाँ कट किया, सिमिलरली इस डी से भी ले जाओ, यहाँ पे कट किया, ठीक है। तो ये देख लिया ना, अब इसको इरेज करने दो तो समझ में आएगा, ठीक है। अब हमें क्या कर, इतना तो पता चल गया हमारा पेरीमीटर कितना होगा ओपन करेंगे तो 120। 120. तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स वाई लाइन पे, थोड़ा डिस्टेंस पे। इसको डिस्टेंस मेजर नहीं करना है, जस्ट हमें मतलब एक मतलब सफिशिएंट डिस्टेंस लेके उसको एक लाइन ड्रॉ करना है जिसका लेंथ होगा 120 में। 120 का ड्रॉ कर सकते हो ना? अब मैनुअली, अगर पहले मैनुअली सोचो, ड्रॉ करना है। अब इसको क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है। देखो 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो एक का कितना हो जाएगा? एक, मतलब क्या करना है एक्चुअली में, करना क्या है हमें, एक साइड है ना उतने का आर्क लेना है, यहां से स्टार्ट करना है, यहाँ पे कट कर दिए, यहाँ पे कट कर दिए, यहाँ पे कट कर दिए, यहाँ पे एंड यहाँ पे। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, लेट मी इरेज। ओके, अब सर एक बार फिर से बता दीजिए वाला। ठीक है, 120 का लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 120 mm का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ अगर स्टार्टिंग पॉइंट है ये तुम्हारा, ठीक है, तो इसका बेस कितना है 20, तो 20 पे कट करेंगे, 20 पे कट करेंगे, 20 पे, यहाँ पे 20 पे, यहाँ पे 20 पे, यहाँ पे 20 पे। इज इट क्लियर? यस सर। अब अगर ये क्लियर हो गया तुमको, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से पूरा ले जाओ, जितना ले जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूरा ले जाओ ऐसे, ये पूरा नीचे से ऊपर जाएगा ऐसे एक लाइन, ठीक है। ये भी ऐसे जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा। ये तक समझ में आ रहा है?
Yes, sir. ओके, और देखो ये वाला भी लाइन है, इसको पूरा ऐसे ले जाओगे तो ये इसके पैरेलल पूरा एक लाइन खींच दो, जस्ट इसके पैरेलल, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम पहले इरेज करते हैं, जो पहले ड्रॉ किए उसको भी सब माइंड में रखना, क्योंकि सारा लाइन एक साथ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझ में नहीं आएगी। तो अब हम देखो, एक मेरा जो पॉइंट ए से गया, जो ए से लाइन प्रोजेक्ट हुआ है वो यहाँ पे कट कर रहा है क्या, 1 पे, हेलो, Yes, sir. Yes. Yes, ये sir. बताओ, वो जो 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, जब उसको ओपन करेंगे तो 1 तो दोनों साइड जाएगा ना। यस सर। तो देखो 1 यहां पे भी है, 1 यहां पे भी है। यस सर। बात समझ में आ रहा है ना, कैसे वो क्या समझ, ये देखो, Yes, sir. यहाँ पे मैं केवल बोलूंगा, तुम्हें विजुलाइज करना है, ठीक है, तभी समझ में आएगा। सिमेट्री से हो जाएगा। हाँ समझ गया ना। अब देखो, जब ये लाइन तुम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हो सारा, ये वर्टिकल लाइन, तो अब क्या करो, 1 से ना एक लाइन इधर प्रोजेक्ट करो। तो जो ए से लाइन पास हो रहा है वो तुम्हारा यहाँ पे देखो, इस वाले पे कट करेगा, लास्ट वाले लाइन पे 2 पॉइंट हमको मिल गया। सिमिलरली जो 2 पे कट कर रहा है, 2 पे, 2 किससे है, ये तुम्हारा बी है, इस वाले पॉइंट और ये वाला पॉइंट। जब 2 को ले जाओगे ऐसे, ठीक है, तो एक पॉइंट यहां मिलेगा, एक पॉइंट यहां मिलेगा। क्लियर है? गॉट इट सर। Yes, sir. जब 3 से ले जाओगे तो क्या होगा, एक पॉइंट यहां मिलेगा, एक पॉइंट यहां मिलेगा, और ये तो एक ही पॉइंट मिलेगा ना यहाँ पे, क्योंकि ये तो कॉर्नर है बिल्कुल, यहाँ पे तो एक ही पॉइंट रहेगा, तो ये जाके तुम्हारा इस वाले पे एक पॉइंट मिल जाएगा। अब देखो, लेट मी इरेज दिस। अब देखो, एक पॉइंट ये मिल गया, पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, देन ये वाला हो गया, एंड सिमिलरली दिस वन आल्सो। अब इतना पॉइंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे लीनियरली ज्वाइन करेंगे, लाइन से। इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे, इससे ज्वाइन करेंगे, इससे सर फ्री हैंड से या फिर स्केल? नहीं, स्केल से करेंगे ना। यस। अगर वो सर्कल होता तो फ्री हैंड से ज्वाइन करते, जैसे इस केस में। वही देखो, सेम प्रॉब्लम है यहाँ पे, सर्कुलर है, सिलेंडर है, समझ में आ रहा है, सेम प्रॉब्लम देख सकते हो ना। तो ये समझ गए तो वो कुछ नहीं है, बस वो भी वैसे ही है, सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड कर दो या 12 पार्ट में डिवाइड कर दो, जितना डिवाइड कर सकते हो, और वहां पे सारा पॉइंट देख रहे हो ना, सिमिलर वे में हुआ वैसे। यस यस सर, अगर स्केल से ड्रॉ करेंगे तो ऐसा मतलब ये जो आप दिखा रहे हैं ना, वो ऐसा तो नहीं आएगा ना, वो स्ट्रेट आएगा पूरा? हाँ, स्ट्रेट ही आएगा, इसमें मत देखो। अब ये बताओ, तुम्हारा अगर हेक्सागन है तो स्ट्रेट ही आएगा ना, अगर सर्कल है तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा, तो उसमें क्या करेंगे, हम फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो इसीलिए हम इसी प्रॉब्लम को कर रहे हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। सर, वो जो 45 डिग्री वाला एक बार बोल दें क्या, वो लाइन थोड़ा, लाइन यहाँ देखो, ये समझ में आ गया ना, यहाँ पे रेक्टेंगल है। हाँ यस सर, यस सर। अब देखो, ये जो बोल रहा है प्लेन कट कर रहा है ना, वो परपेंडिकुलर है वीपी के, और यहाँ से पास कर रहा है एपेक्स, राइट एपेक्स कॉर्नर से। तो इससे एक लाइन पास करना है जो 45 डिग्री एंगल बनाएगा एचपी से। अगर एचपी से 45 मतलब ये 45 हो जाएगा क्या, समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। तो यही बोल रहा हूँ, क्लियर है से पूरा? यस सर, यस सर। हाँ, तो आज इसको नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ऑटो कैड में होता रहेगा, ठीक है, और तुमको वेडनेसडे तक का टाइम दे दिए हैं तो होता रहेगा, ठीक है, क्लियर? जस्ट एंड जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। Excuse me, sir. यस मैम। सर, वेडनेसडे को सिर्फ शीट नंबर 7 सबमिट करना है ना? पूरा फाइनल करना है पूरा। तो 7 और 8 दोनों? सर ऑटो कैड में करके सबमिट करना है? हाँ हाँ, ऑटो कैड में। अब एक चीज और देखो, क्या है तुमको बता रहे हैं, जो लास्ट क्लास में तुम ऑटो कैड पढ़े थे ना, मैम जो भी बताई थी, स्टार्ट हुआ था। ये पीडीएफ आप ग्रुप में भेज देंगे? हाँ, आज मैं मेल कर दूंगा इसको, ठीक है, मतलब पीडीएफ गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देंगे।
सर जो क्विज आप करेंगे वो इसी रिलेटेड आएगा ना, ऑटोकैड मतलब हाँ related ऑटो कैड question? रहेगा, जो पढ़े हो उससे बेसिक्स रहेगा, ठीक है। सॉलिड क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, उसके बीच का एंगल क्या होता है, ठीक है। DWG फाइल में शेयर कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हो। ओके सर। अब ये देखो, ऑटो कैड का ही हिस्ट्री दिया हुआ, पढ़ लेना, ठीक है, कहाँ कहाँ कब इन्वेंट हुआ था, ये सब सारा चीज। बाकी ये सब ओपन किए थे मैम, याद है तुमको लास्ट क्लास में? यस सर। तो Yes, ये sir. जितना पार्ट देख रहे हो ना, ये तुम्हारा क्या होता है, ये रिबन बार होता है। रिबन बार मतलब अगर लाइन ड्रॉ करना है तो इसको लाइंस कमांड को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे आओगे तो लाइन ड्रॉ हो जाएगा। या तुम लाइन का कमांड होता है एल, कमांड बॉक्स में टाइप कर दो एल, वहां से भी तुम कर सकते हो। यहाँ पे एल टाइप करके इंटर करो, लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगा। लाइन बताई थी मैम, पॉलीगन बताई थी, सर्कल भी शायद बताई थी, ठीक है। तो सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, आर भी कर सकते हैं, बाकी और कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसको कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर वर्क एरिया, जितना भी देख रहे हो सारा वर्क एरिया है, ठीक है। बहुत सारा चीज है इसमें, ये देख सकते हो। डायमेंशन मैम ने बताया था ना कैसे यूनिट सेट करते हैं। यस सर यस। लिमिट से आज मैम स्टार्ट करेंगे, लिमिट कैसे करते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा कुछ कमांड है, ग्रिड मोड क्या होता है, स्नैप मोड क्या होता है, ठीक है। ये सारा स्लाइड भेजेंगे, तुम इसको कर सकते हो। F7 ऑन करोगे, अभी दिखा देंगे करके, ठीक है। देख लो इसको एक बार, इसका स्नैपशॉट ले सकते हो, अभी ले लिए। यस सर। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा। फिर ये बाकी सारा और सारा कमांड है वो सब मैम बता देंगे तुमको। और ये टाइटल ब्लॉक है जो तुमको ऑटो कैड में बनाना है, ठीक है। तो इससे भी बहुत सारा तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। सो जस्ट सर यस यस। सर वो जो 7 और 8 का अब दिए अभी प्रोजेक्ट, वो हाँ सर हाँ, पेपर में करने से चलेगा क्या? ऑटोकैड में थोड़ा टाइम लगेगा नहीं सर। ऑटो कैड में ही करना है उसको, कुछ तो सीखो ऑटो कैड में, ठीक है। सीख जाओगे, कोई बड़ा चीज नहीं, एक से स्टार्ट तो करो। इसलिए मैं देखो एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, आज ये कर लो। नेक्स्ट क्लास में जो ये क्वेश्चन नंबर 7, सीट नंबर 8 का, सीट नंबर 8 का तुम्हारा, सीट नंबर 8 का मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बताया, क्वेश्चन नंबर 1 भी बता दूंगा। और फिर ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करना, अगर हो जाएगा तो अच्छा है, आज सर ठीक है। सर नहीं आज आज तो इसको नहीं करना है, ये तो या अगर सैटरडे को क्लास होगा तब, या संडे को क्लास होगा तब सीट नंबर 8 उसमें करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, दूसरा क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और बाकी मैम अभी तुम्हारा जो क्या एक्सप्लेन करेंगी, उसको लिमिट कैसे करते हैं, टाइटल ब्लॉक कैसे बनाते हैं, और तुम्हारा मैम जो है एक क्वेश्चन करके इसमें से थोड़ा सा हेल्प करेंगे तुमको। ये सीट ओके नंबर सर। 7, सीट नंबर 7 का मैंने 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन किया तुम लोगों को ना। यस सर। एक ही क्वेश्चन Yes, कर लो, sir. ऑटो कैड में बहुत है, एक ही क्वेश्चन कर लो ऑटो कैड में एटलीस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन तुम सीट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर चेक करना चाहते हो तो। दोनों क्वेश्चन अगर तुम ऑटो कैड स्टार्ट करोगे तुम बोलोगे नहीं दोनों क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो नहीं होगा तो हाफ हाफ में डिवाइड कर लेंगे, हो जाएगा तो ऑटो कैड में कर लेंगे। ठीक है ठीक है। ओके, सो इसको क्लोज करते हैं, मैम से बात कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट बी देयर। कैन यू सी, इज इट स्टिल शेयर्ड? नो सर। नो सर। No, Okay, just be there, you can take rest for 2 or 3 minutes. You come again, okay, you can take water, everything whatever you want.
Okay. Hello everyone. Yes, sir. Okay, so now ma'am is here, Ankita ma'am. So she will discuss with you. So whatever she has told in AutoCAD regarding dimension, after that limit, okay, लिमिट हो जाएगा. उसके बाद तुम टाइटल ब्लॉक अगर मैम बताती हैं तो देख सकते हो, ठीक है, कर सकते हो. उसके बाद शीट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 एटलीस्ट करना ही करना है, ठीक है, AutoCAD में. इज इट क्लियर? सर क्वेश्चन 1 and 3 करना है. हाँ, 1 तो करो पहले, एटलीस्ट 1 आज हो जाना चाहिए, इतना सारा भी करो, ठीक है. ठीक है सर. ओके, सो मैम यू कैन स्टार्ट नाउ. Okay, sir. My screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So last दिन जो हुआ था हमें लिमिट कमेंट बताना था. ओके, कैसे लिमिट में लाना है. हाँ, तो लिमिट के लिए तुम्हें कमेंट में जाके एल एंटर देना है पहले. LI, सॉरी, दिस वन इज लिमिट. ओके, लिमिट प्रेस करना है तो तुम्हें बोलेगा ये लिमिट स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर और 00 whatever. So you have to put here 0,0, sorry, 0,0, enter. Then it will tell you that limit specify upper right corner. Okay, here मैंने इस शीट का लिमिट लिया है 100,100. तुम कुछ भी ले सकते हो तुम्हारे शीट के अकॉर्डिंग. तो मैं यहाँ पुट कर रही हूँ 100,100 एंड एंटर. देन Z for zoom enter and A enter, A for all. ओके, तो ये मेरा लिमिट सेट हो गया. अभी ये जो पूरा पेज दिखा रहा है ना हमें, ये पूरा पेज का डायमेंशन 100 and 100 है. ओके मैम 100,100 के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? 100,100 के बाद था तुम्हें वो जूम एंटर ऑल एंटर करना है कि ताकि जो शीट तुमने जो डायमेंशन लिए तुम्हारा डेस्कटॉप में वही डायमेंशन का शीट तुम्हें खुले. मतलब तुम्हें अभी डेस्कटॉप में ये जो दिखा रहा है जितना इसका, ये 0 to 100 इस पेज का डायमेंशन है. अभी तो मैं अगर 0 से लेके अगर मैं सपोज 1000 की, तो मेरा ये जो पूरा विंडो दिखा रहा है इस विंडो का डायमेंशन होगा फिर 0 to 1000. मैंने वो स्टार्टिंग से प्रोसेस बता दीजिए. सॉरी, स्टार्टिंग से एक बार बता दीजिए प्रोसेस. ये लिमिट वाला. यस मैम. यस मैम. यस मैम. हाँ, तो कमेंट में जाके कीबोर्ड से LI या फिर LIM क्लिक करना है तो लिमिट्स आ जाएगा. ठीक है, देख रहे हो? यस मैम.
या सो इसको सिलेक्ट करो। अब ये बोल रहा है लिमिट स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, और तुम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम ऐसे सॉरी इनपुट देके हम करेंगे फॉर एक्यूरेसी। तो मुझे फर्स्ट कॉर्नर तो हम 0 0 ही लेते हैं एक्स वाई को ओरिजिन के, तो मैं ले रही हूँ 0,0। ओके, फर्स्ट 0,0, तो मेरा ये फर्स्ट कॉर्नर सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब एंटर प्रेस कर रहे हैं तो आ गया लिमिट स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, मतलब हमें ये वाला कॉर्नर कौन सा चाहिए वो बोलने के लिए बोल रहे हैं, मतलब इस पूरा पेज का डायमेंशन में कितना चाहिए। तो मैं इधर 100 में ये ड्राइंग कर रही हूँ, तो चेंज नहीं कर रही हूँ, तुम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तुम्हें अगर 150 देना है तो 150 दे सकते हो, कॉमा देके वही 150 कर लेना। ओके, फिर मैं जैसे यहाँ पे 100 की हूँ तो अभी नहीं चेंज कर रही हूँ, मैं 100,100 कर रही हूँ, फिर एंटर क्लिक करना है। एंटर हो गया। अब इस पेज को फिक्स करने के लिए, जैसे मेरा तो फिक्स्ड इसीलिए चेंज नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा अगर इधर उधर है इसीलिए करना जरूरी है। Z क्लिक करना, पहले जो आ रहा है देखो जूम, ठीक है, Z फॉर जूम, तो जूम एंटर, फिर ए एंटर, ए फॉर ऑल, तो ये पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। अभी जो पूरा पेज है इसका डायमेंशन होगा 0,0 से 100,100, या फिर तुम जितने लोगे उतना ही होगा पूरा ये पेज। मैम हाँ मैम पहले जूम एंटर फिर ए एंटर। हाँ, Z फॉर जूम एंड A फॉर ऑल, मतलब सब पूरा जो जूम था पूरा वो जूम हटके, मतलब तुम्हारा जो जितना तुम स्पेस सिलेक्ट की हो उतना ही जूम करके तुम्हें ये दिखाएगा। फिर तुम्हारा ये जितना पेज है उतना ही पेज दिखाएगा, इससे ज्यादा या कम नहीं दिखाएगा। मतलब ये तुम्हारा फिर वर्क स्पेस हो गया जिसमें तुम ड्राइंग कर रहे हो। एनी डाउट? तो अभी स्क्रॉल करने से जूम नहीं होगा क्या? नहीं, जूम वगैरह तो होगा ना। ओके जूम वगैरह भी होगा, लेकिन तुम्हें जितना ये तुम्हारा, सपोज तुम्हें एक बड़ा सा A4 शीट, तुम्हें A3 शीट मिला, अब तुम्हें A4 शीट का काम करना है, तो A3 तो बड़ा होता है ना A4 शीट से। अब तो तुम क्या करोगे, उसमें तुम्हें जितना चाहिए होगा A4 का तुम हिसाब कर लोगे, फिर A4 का मार्जिन कर लोगे या पेज फाड़ लोगे बाकी का, फिर उसमें काम करोगे ना। तो तुम्हारा वर्क स्पेस कितना A4 चाहिए तुम्हें, तो सपोज पकड़ लो इसको तुमने A4 में कन्वर्ट कर लिया, ऐसा है। या फिर कोई बड़ा सा आर्ट पेपर लेते हो, फिर उसमें कोई ड्राइंग करते हो या कुछ, तो आर्ट पेपर को उसको फोल्ड करके 4 या 8 उसको साइज करके फिर उस पर काट लेते हो ना, वैसा ही इसको, इसका तो बहुत जितना बड़ा लिमिट चाहो ले सकते हो, उसको ही छोटा करके तुम्हारा जितना वर्क स्पेस चाहिए उतना बनाना है। उतना बनाने का ये है लिमिट ऑप्शन, ऐसे तुम्हारा पेज का लिमिट सिलेक्ट करना है। एनी डाउट? यस मैम। मैम चेक कैसे करेंगे कि लिमिट 0,0 और 100,100 है? मतलब जरूरत तो नहीं है, करना है तो ये इधर डायमेंशन है ना। ओके, थैंक यू। हो गया, नेक्स्ट कमेंट में चले। यस मैम। या तो तुम्हें आज चाहिए होगा, पहले भी दिखाए हमने पॉलीगॉन वाला, हमें पेंटागन चाहिए होगा इसके लिए। ठीक है, पेंटागन तो सिलेक्ट कर लिए पेंटागन। अब बोल रहे हैं एंटर नंबर ऑफ साइड्स, तुम्हें कितना चाहिए, तो मुझे पेंटागन चाहिए तो मुझे 5 साइड चाहिए, तो मैं 5 क्लिक कर ली, 5। ओके, फिर एंटर। स्पेसिफाई सेंटर पॉलीगॉन, या फिर तुम्हें जहां पे सेंटर तुम्हें देना है। अभी मैं फिलहाल ऐसे ही दिखा रही हूँ, तो सेंटर यहाँ पे क्लिक कर ली। ओके, अब बोल रहा है तुम्हें क्या करना है, इंस्क्राइब्ड इन सर्किल और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल, मतलब जो पॉलीगॉन जो पेंटागन तुम्हें बनाना है
उसका एक सर्किल के हिसाब से बनाएगा, या तो फिर तुम्हें एक सर्किल के तुम बाहर उसको बनाना चाहते हो या एक सर्किल के अंदर बनाना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे मैं अभी इंस्क्राइब कर रही हूँ इन सर्किल, तो मैं चेंज नहीं की ऑप्शन, ठीक है, ये इसे नहीं कर रही हूँ। तो स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है, मुझे सपोज 20 चाहिए, तो मैं 20 वैल्यू दी, फिर एंटर कर दी, तो ये ले लिए। अब तुम ये डायमेंशन से देख सकते हो इसका कितना ये है। मैम सेंटर में क्या डालेंगे? सेंटर सॉरी, सेंटर किसका सेंटर? लिखा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। हाँ, ये सेंटर है ना, तुम कहाँ पे करना चाहते हो? तुम अगर पहले इसको बनाना चाहते हो तो कहीं पे भी सेंटर पॉइंट करके कर सकते हो, या फिर सपोज पकड़ लो तुम इस लाइन के स्पेसिफाई तुम करोगे, इस लाइन से थोड़ी दूर पे किसी भी डिस्टेंस पे तुम करोगे, फिर तुम इसको उस हिसाब से करोगे, नंबर ऑफ मैम सेंटर ऑफ पॉलीगॉन और एज में टाइप क्या करेंगे? समझ लो, मुझे इसको सेंटर लेना है तो इधर ही क्लिक किए, ये करना है तो ये, समझ रहे हो? हम एक बार फिर से बोल दीजिएगा। ओके, सपोज तुम्हें ये बनाना है, एंटर कितना साइड चाहिए तुम्हें बोले, मैं सोची मुझे 6 साइड चाहिए, अभी 6, फिर एंटर, फिर बोल रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगॉन, और तुम ये जहाँ पे करना चाहते हो वो वाला वैल्यू भी दे सकते हो। तो मुझे अभी सपोज मुझे यहाँ पे सेंटर चाहिए, तो मैं इधर सेंटर क्लिक की। अब बोल रहा है अब ये बोल रहा है तुम्हें ये जो सॉरी पॉलीगॉन ये बनाना जो है वो तुम एक रेडियस कैसे पकड़ना चाहते हो, वो एक सर्किल के हिसाब से ये ड्राइंग करता है। तो तुम्हें ये बोल रहा है कि तुम्हें वो पेंटागन जो है वो सर्किल के अंदर चाहिए, सर्किल का बाहर चाहिए, सर्किल के इनसाइड में चाहिए या आउटसाइड में चाहिए, उस हिसाब से तुम चूज करोगे तुम्हें कैसा चाहिए। फिर वहां से तुम इधर फिर कहाँ पे एंड पॉइंट देना है तुम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो या कोई भी वैल्यू दे सकते हो, एंटर हो गया। मतलब ये सर्किल के हिसाब से करते हैं तुम, या तो फिर ये ऐसे करके सर्किल के इसके अंदर सर्किल चाहते हो या फिर इसके बाहर चाहते हो, समझ गए? ये एक बोल रहा है तुम ये अंदर ये वाला ऐसे बनाना चाहते हो या ये सर्किल के अंदर ऐसे बनाना चाहते हो। क्लियर? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट तुम्हें चाहिए होगा इधर, ये तुम्हें हैच वाला चाहिए होगा, ठीक है। तो अभी हैच कैसे बनाते हैं वो बोल रहे हैं। ठीक है, सपोज मैं इधर हैच बनाना है, ठीक है। अभी तो क्या करना, पहले तुम्हें एक बाउंड्री बनाना है जिस बाउंड्री में कोई लीकेज नहीं हो। अगर कोई भी जगह लीकेज हो तो तुम एक पॉइंट में दोगे तो पूरे जगह को हैच कर लेगा, ठीक है। अभी जैसे मैं ये बनाई तो मुझे पता है इसमें कोई लीकेज नहीं है, मतलब कहीं पे भी ये निकल नहीं जाएगा, तो मैं इस जगह पे ही कर रही हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा हैच ऑप्शन है, क्लिक करोगे तो ऐसा खुल जाएगा, तुम्हें कौन सा लेना है तुम देख सकते हो। अभी फिलहाल मैं इसमें ही कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर ली। अब मुझे बोल रहा है ये हमेशा ये तुम्हारा पॉइंटर के इधर दिखा देगा तुम्हें क्या करना है, उसको फॉलो करो अगर पता नहीं है तो। बोल रहे हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तुम्हें कहाँ पे करना है, ओके। तो मुझे इसके अंदर करना है तो मैं वो उसको सिलेक्ट कर रही हूँ, इधर किए, फिर नेक्स्ट सिलेक्ट, सॉरी हाँ, तो इधर मैं सिलेक्ट की, फिर इस लाइन को सिलेक्ट की, फिर इस लाइन को सिलेक्ट की,
एंड फिर इस लाइन को सिलेक्ट की। अब इसके अंदर वाला जो क्वेश्चन है वो हैच हो गया। मैम हैच क्रिएशन कहाँ पे है मैम? ये हैच क्रिएशन जो यहाँ पे, सॉरी मैम ये हैच क्रिएशन कहाँ पे है? हैच एच इंटर, इधर है, एच इंटर कर दो। ये अच्छा, देखो, अच्छा। समझ गए? यस मैम। या और एक है इधर मूव कमेंट। तुम्हें सब कुछ भी मूव करना है तो इसको सपोज तुम एक लाइन खींचे और तो दिख रहा है? लाइन दिख रहा है। हाँ, तो सपोज तुम्हें इसको मूव करना है तो ये लाइन को सिलेक्ट किए। ओके, तो तुम्हें किस साइड मूव करना है? स्पेसिफाई ऑपोजिट कॉर्नर। मुझे ये माउस भी ना इधर उधर इतने भागते। वैसे तुम्हें अगर मूव करना है ऐसे सिलेक्ट करके भी तुम मूव कर सकते हो। जैसे इसको पकड़े, अब मुझे इधर सपोज इधर लाना है तो मैं इसको इधर छोड़ दूं, ऐसे भी तुम मूव कर सकते हो। ओके, या तो फिर ये कमेंट पकड़ो, फिर कमेंट जैसे बोल रहा है वैसे उस हिसाब से करो। हो गया, देखो। तो अभी फिलहाल तुम्हें ये सब कमेंट ही चाहिए होगा, तो ड्राइंग स्टार्ट करो। कोई भी कमेंट का कोई पे अटके तो पूछना। आप एक क्वेश्चन करके दिखा सकती है क्या? हाँ? वो पहला जो 7 नंबर का सर अभी प्रोजेक्ट दिया उसका एक क्वेश्चन करके दिखा हाँ, सकती है? ये मैं अभी बना रही थी तो इधर ही मैं दिखाती हूँ। पहले मैंने क्या किए इस ड्राइंग का, तुम एज ए रेफरेंस सर ने जो दिखाए रेफरेंस वो भी खोल सकते हो। थोड़ा जूम आउट कर सकते हैं? सॉरी, जूम आउट कर सकते हैं थोड़ा? नहीं समझी। और इसको हम जूम आउट जूम आउट कर सकते हैं? अच्छा, इसको जूम आउट करने के लिए बोल रहे हो? यस मैम। हाँ, ये मेरा पूरा कॉम्प्लेक्स में जो स्टार्ट की थी। ओके, रुको। ठीक है, ये पूरा पिक्चर तुम्हारा इस टाइप का आएगा। इसके ऊपर तुम्हें डायमेंशन देना है और ये लाइन का टाइप चेंज करना है। ये प्रॉपर्टीज में जाके तुम्हें पहले दिन में दिखाई थी। ठीक है, इधर जाके तुम्हें फिर चेंज करना है तुम्हें वो सेंटर लाइन वगैरह के लिए। ठीक है, तो वो बाद में कर लेना। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, पहले तुम्हें ये एक्स वाई लाइन खींचना है। ठीक है, अब एक्स वाई लाइन से तुम एक लाइन खींचोगे। मैम आप एक बार करके दिखा सकती है क्या? मतलब ऐसे मैं पूरा क्लियर आउट कर दीजिए। फिर बहुत टाइम लग जाएगा, मेरा माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। मुझे एक लाइन चाहिए एक्स वाई के लिए, कुछ भी ले रहे हैं। चलो, ठीक है। अब मुझे सेकेंड वाला जो लाइन जो ये इसका सेंटर है ये लेना है 55 नीचे है इससे। तो मैं पहले एक लाइन खींच लूंगी। सपोज इसका सेंटर पकड़ लूं, सेंटर से मुझे लाइन का ये चाहिए 55। एंटर हो गया। अब इधर से मुझे वो पेंटागन बनाना है। नंबर कितना चाहिए पेंटागन का? साइड 5 होता है। 5 एंटर। आप स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट बोल रहे हैं तो मैं इधर से सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कीजिए। ठीक है, अब तुम्हें
एंगल देना है, कौन सा बनाना है बोल रहे हैं। सपोज मुझे ये वाला बनाना है। अब तुम डायमेंशन दोगे, मैं कुछ भी दे रही हूँ, 25 दिए डायमेंशन, कुछ भी है 20 दिए, जो क्वेश्चन में जितना है वैसा ही देना, मैं जस्ट दिखा रही हूँ। फिर एंटर पकड़ लिए तो ये आ गया इसका सेंटर। ओके, अब लेकिन ये जो है इसका एक साइड बोल रहा है इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो इसको हमें मूव करना पड़ेगा, इस लाइन को। तो मूव कैसे करें? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ इसको सिलेक्ट कर लिए। ये माउस ये मूव वाले में और रोटेट वाले नहीं हो रहा है मेरा माउस से ठीक से। तो तुम समझ गए हो ना, इसको फिर रोटेट करना है, मूव करना है, या फिर रोटेट कर सकते हो ऐसे। ये रोटेट ऑप्शन है, ये वाला मूव के बगल में जो है ये रोटेट है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, रोटेट सिलेक्टेड। एक सेकेंड, क्या ना कुछ ऑप्शन।
ड्राइंग बनाने के लिए माउस सही होना बहुत जरूरी है। मैं वो पेंटागन को कहाँ मूव करना है? हाँ वही बार बार हट जा रहा है। अब नहीं मेरा तो हो फिर गया, उसके आगे क्या करें? हाँ, तो यहाँ से तुम्हें क्या था क्वेश्चन? हाँ, तो अभी तुम्हें चाहिए होगा यहाँ से ऊपर कितना चाहिए लेंथ? ऊपर तुम्हें लेंथ चाहिए, ये जो हाइट चाहिए उसका तुम्हें 60 चाहिए है ना? तो फिर ये लाइन लेते हैं, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं इस लाइन तक। अब इसके ऊपर हमें 60 चाहिए। ओके, तो हम यहाँ से वैल्यू क्लिक करते हैं 60, एंटर। तो ये वाला जो लाइन है, ये पॉइंट है, ये 60 ऊपर हो गया ये, ठीक है। अभी फिर इधर से हाँ, इधर से इधर खींचो, ठीक है। ऐसे करके सारे इधर से लाइन खींचोगे इधर, फिर उसको इधर ज्वाइन करोगे, ठीक है। ऐसे करते रहो। अब फिर ये सबको इधर ज्वाइन करोगे। तो हो गया, ऐसे सारे ज्वाइन करना है। अब तुम्हें ये वाला पॉइंट चाहिए, कहाँ पे है, इसका हाइट कितना है, कहाँ पे ये कट कर रहा है, इसको अभी खींचना है। तो वो है 35, वो इस एक्सिस से 35 ऊपर है, ठीक है। तो हम फिर से लाइन लेंगे। मैम अब मूव कैसे किए पेंटागन को बगल में? हाँ, वो मैं बोल रही हूँ, बार बार नहीं कर सकती क्योंकि मेरे माउस उसमें मूव एंड रोटेट में मैम प्रॉब्लम। वो ब्लू हो जा रहा है, ब्लू मतलब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया पेंटागन, अब उसको मूव कैसे करें? मैम राइट क्लिक से मूव कर रहे तो नहीं हो रहा। Ma'am, I think we have to, after selecting, we have to press space bar and then we have to move. भाई ब्लू, अच्छा हाँ हो गया भाई। हाँ, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो ना, तो मुझे कमेंट में क्या बोल रहे हो उसको, कमेंट में या कर्सर के बगल में जो कमेंट आ रहा है उधर क्या बोल रहा है उसको फॉलो करते रहना तो हो जाएगा। मेरा माउस बहुत तेज भाग रहा है, तो मतलब मूव रोटेट ये सब में प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी सब ठीक है। हाँ, तो इधर से मुझे कहीं से भी एक लाइन खींचना है 35 ऊपर, 35 है ना, कुछ भी हो, 35 दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी इसका जो हाइट है 35, अभी ये 35 ऊपर से इसको कट कर रहा है, तो इधर एक कोई भी एक लाइन खींचते हैं, हो गया। हाँ, तो ये वाला लाइन हमारा कट कहाँ पे हो रहा है, आ गया। अब फिर इधर से इस पेंटागन के ऊपर हम लाइन खींचेंगे, जहां पे इधर काट है ना, इधर से इस पेंटागन के ऊपर हम लाइन खींचेंगे। कहाँ पे हो रहा है ये, इधर, शिट।
ये मेरा माउस इधर से इस पेंटागन के ऊपर लाइन खींचना है, सीधा कहाँ पे आ रहा है उधर ही खींचना है। ओके, फिर एंटर, इधर से भी सेम। ये इधर सारी अभी खींच लोगे, फिर इधर से सबको ज्वाइन करना है। ये सेंटर पॉइंट से ना हर एक कॉर्नर को ज्वाइन करना है तुम्हें। हो गया। अभी ये जहां पे इस लाइन को, ये वाला लाइन जहां पे कट किए, उधर उधर तुम्हें लाइन खींचना है। फिर ऐसा एक अंदर एक ऐसा ये बन जाएगा तुम्हारा पेंटागन जैसा। ठीक है, मैम थोड़ा फिर से बोल दीजिए वो जो हैच वाला, मतलब इसके बाद हैच आएगा ना। मैम हाँ मैम वो करेंगे कैसे बोला पर मैम मैम पेंटागन का सेंटर वो कैसे निकालते हैं? सेंटर तो तुम्हारा इधर है ना, इधर लेके जाओगे तो तुम्हें दिखा देगा सेंटर कहाँ पे। जैसे सर्किल की इधर भी लेके जाओगे तो तुम्हें दिखा देगा। ये देखो सेंटर दिखा रहा है। कुछ भी एक पेंटागन ऐसे खींच लो ना। हाँ ऐसे खींच ली। अब इसको तुम्हें सेंटर चाहिए। ये देखो मैम पेंटागन का बेस लेंथ कैसे, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम पेंटागन का बेस लेंथ कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसका तो इंस्क्राइब सर्कल के हिसाब से, रेडियस के हिसाब से दे रहा है। हाँ तो उसके हिसाब से तुम्हें देना पड़ेगा ना, कैलकुलेट करके दो। ओके ये देखो इधर तुम लेके जाओगे तो तुम्हें इधर दिखा भी रहा है। कहाँ दिखा रहा है? हाँ ये देखो जो तुम्हें दो पॉइंट दे रहा है ना, इधर दिखा रहा है। अब समझ गए सर्कल वाला कॉन्सेप्ट? यहाँ से देख लेना। ठीक है, अभी इधर जो है इसको हमें ये करना है, लाइन खींचना है जहाँ पे कट किए। हो गया। अब इसके अंदर हैच खींचना है। ये हैच पकड़ो, ये सिलेक्ट। ये जो अंदर आप वो जो बनाए पेंटागन, वो उसका मैम लेंथ कैसे पता चला? वो जो कट किया सेम होगा सबका लेंथ? हाँ ये मैम देखो उसका इधर, एक सेकंड, ये देखो इधर मेरा कहीं पे लीक था तो ये पूरा पकड़ लिया। समझे? तो जरूरत पड़े से तो दोबारा से ये लाइन इसको एक बार रिपीट कर लेना। मुझे इधर जाना है।
ये देखो अब ये अंदर में ही हुआ, ठीक है। ऐसे ये पूरे सेक्शन को तुम्हें हैच करना है, और फिर हैच करने के बाद हाँ, फिर ये सब लाइन पकड़ के जो सेंटर वाला लाइन, जो वाला पीछे वाला लाइन है, ये लेयर में जाके तुम्हें पता है कैसे वो उसका ये चेंज करना है, उसको चेंज कर देना। और फिर इस सब का या डायमेंशन में जाके डायमेंशन दे देना। और तुम चाहो तो इसको हटा देना, ये वाला रेफरेंस लाइन है ना, इसको तो जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। बस ऐसे ही बनाना है। मैम जो प्लेन का लाइन था वो कैसे हुआ मैम? सिर्फ कौन सा ऐसे ही लाइन, सिंपल लाइन, मैम जो प्लेन कटा है वो लाइन? ये वाला जो मैम जो- लाइन है ना, नो ये मैम, जहाँ ऊपर पे वाला, यहाँ पे ऊपर वाला। ये वाला, हाँ यस मैम। ये वाला तो यहाँ से बोले ना 35 या 30 ऐसा कुछ ऊपर कट किए बोले ना। 30 मैम एंगल पे? हाँ, लाइन था ना वो, तो क्वेश्चन ढूंढना था। मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर। हाँ 35 mm अबव द बेस बोले ना, जो कट किए। ओके, वहां से। क्वेश्चन में देखो, पैरेलल टू HPN कटिंग द एक्सिस एट ए पॉइंट 35 mm अबव द बेस। ये तुम्हारा बेस लाइन है ना, इसका 35 mm अबव पकड़ रहा है, तो इसका 35 ऊपर लिए या कुछ भी हो। अब सेम जितने सारे तुम्हें कमेंट पता है, इससे बाकी सारे हो जाएगा। और एक चीज दिखाना है, वो सर ने बोले थे देखो। हाँ तो ये टाइटल बॉक्स बिल्कुल इजी है। तुम्हें ये बॉक्स बनाना है, रेक्टेंगुलर जो है कमेंट, इधर ही पेंटागन जैसे बना है, इधर रेक्टेंगुलर है। यहाँ से तुम्हें ये देखो बोल रहा है स्पेसिफाई फास्ट कॉर्नर पॉइंट पे देना है, कुछ भी दे दो कीबोर्ड से, कुछ भी, फिर एंटर, फिर स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, कुछ भी दे दो, एंटर। ठीक है, तुम्हारा कुछ बॉक्स हो गए में बहुत ज्यादा कुछ भी वैल्यू तो दिखा नहीं रहा है। तो ऐसा तुम्हारा, तो ऐसे करके तुम्हें बॉक्स बनाना है। बॉक्स का डायमेंशन क्या है, ये इज 65 इंटू 185 हो गया, ये पूरा बॉक्स हो गया। ठीक है, फिर इसको तुम्हें कट करना है। ये तुम ऐसे तुम लेंथ लेके भी कर सकते हो, और एक ऑफसेट करके कर सकते हो। ऑफसेट मैंने नहीं बताया, तो ऑफसेट अभी बता रहे हैं। ठीक है, ऑफसेट का कमेंट है, देखो ओ खींचे तो ऑफसेट आ गया। ठीक है, अभी तुम्हें सोच लो, बोल रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, तुम्हें कितने डिस्टेंस में करना है, तो मैं सोच लो दे दी 50। ठीक है, एंटर। बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, मुझे सपोज ये वाला लाइन का ऑफसेट निकलना है, तो इसको क्लिक किए। अब बोल रहा है किस साइड पे तुम्हें करना है, तो मैं बोली मुझे इस साइड पे करना है, तो ये ऑफसेट हो गया। ठीक है, इसका ऑफसेट देखो इधर हुआ, देख रहे, ये वाला लाइन आ गया, ये वाला पहले नहीं था। तो सिमिलरली ऐसे ही तुम्हें ये ऑफसेट करके भी कर सकते हो, और फिर मेजर करके पॉइंट करके भी कर सकते हो। ऐसे करके तुम्हें ये वाला स्क्रीन अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, टाइटल बॉक्स ऐसे ही बनाना है। Ma'am, could you explain the offset once? ऑफसेट, ओके, ऑफसेट तो जो मैंने ये लाइन खींचे, तो मुझे इस लाइन का ऑफसेट बनाना है। ठीक है, तो इधर कमेंट में आके ओ टाइप करने से इधर किसका, हाँ, ओ टाइप करने से फर्स्ट कमेंट ऑफसेट आ गया, तो एंटर। अभी मुझे ये बोल रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, मुझे कितने डिस्टेंस में करना है। तो सपोज मैंने भी मुझे 15 mm डिस्टेंस में करना है।
तो दे दिए, अब एंटर दिए, अब बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, जिस ऑब्जेक्ट का ऑफसेट बनाना है उसको सिलेक्ट करो। कि अब कौन सा साइड में करना है, तुम्हें ऊपर या नीचे करना है। मैं सोची मुझे नीचे करना है, तो इस साइड में क्लिक की तो मेरा हो गया। अब मैं ऊपर क्लिक करती तो मेरा हो जाता, जैसे ये क्लिक की, मुझे सपोज ऊपर करने का मन है तो ऊपर क्लिक की, ये हो गया। समझ गए? ऐसे ऐसे ऑफसेट हो जाता है। ओके मैम। सिंपली हाँ ऐसे ही ये बॉक्स को बनाना है, और फिर और तो कुछ नहीं है। और फिर उसका डायमेंशन दे देना, और टेक्स्ट कॉमन इधर है, स्पेसिफाई कौन। अभी मैं जगह सिलेक्ट कर दी, मैं ज्यादा ही कर दी तो ऐसा दिखा रहा है, तो मैं जो भी लिखना है इधर लिख देना है ऐसे। आई डोंट थिंक और कोई कमेंट है तो करो। एक्सक्यूज मी मैम। या श्योर। हाँ मैम, इन द लास्ट क्लास आपने यूनिट्स पढ़ाया था ना, उसमें थोड़ा डाउट था। यूनिट्स ओके। यस मैम, मेरे ऑटो कैड में हाँ वो मेरे को पता है उसको कैसे करते हैं, बट व्हेन आई एम डूइंग इन माय ऑटो कैड तो वो जो सर्कल आई एम मेकिंग ना वो बहुत छोटा बन जा रहा है। सो हाउ टू रेक्टिफाई दैट? नहीं समझे, यूनिट से क्या प्रॉब्लम है? तुम देखो कौन सा यूनिट दियो, जैसे यहाँ पे डेसिमल है, इंचेस है। yes, तुम्हें अगर मिलीमीटर में करना है तो मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो। इसमें तुम देखो तुम क्या यूनिट यूज कर रहे हो, और वो वाला इधर सिलेक्ट है कि नहीं, देखो। ठीक है, ओके मैम। हाँ। एक्सक्यूज मी मैम। या मैम वो यूनिट वाला कहाँ से मिला, वो थोड़ा बोल देंगे फिर से क्या? यूनिट वाला इधर यू एन, तो फर्स्ट वाला आ गया, देखो यूनिट, एंटर। ये खुल गया तुम्हारा ये पैनल। इधर तुम्हें सिलेक्ट करना है तुम कौन सा इसमें करना चाहते हो, डेसिमल में या आर्किटेक्चर या इंजीनियर में। मैं जैसे डेसिमल, अब तुम्हें प्रिसिशन, जीरो के बाद सॉरी पॉइंट के बाद तुम्हें कितना जीरो चाहिए, 1 2 3 4 में सपोज मुझे 2 जीरो तक वैल्यू चाहिए। सपोज 0.50 कभी आ गया, या 70 आ गया, ऐसे भी ले सकते हो, या 700 ऐसे करके। तो तुम्हें कितना चाहिए, तुम्हें पॉइंट के बाद 3 वैल्यू चाहिए, 4 वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए। मैं सपोज मुझे 2 वैल्यू तक चाहिए, तो ये वाला सिलेक्ट की। अब मुझे ये यूनिट सिलेक्ट करना है, मुझे इंचेस में करना है या मिलीमीटर में करना है, सपोज फीट में करना है, सपोज मुझे इंचेस में ही रहना है। तो ये वाला वो सिलेक्ट कर ली, अब ओके कर दी तो हो गया। अभी जो जितना वैल्यू आएगा इस हिसाब से ही वैल्यू आएगा, सारी यूनिट आएगा इधर। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम या मैम मैंने चेंज करके किया, पहले मिलीमीटर में फिर सेंटीमीटर में, बट डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, रेडियस सेम आ रहा है सर्कल का। तुम डायमेंशन में जाके देखो तुम्हारा कितना क्या आ रहा है। ओके मैम। हाँ, उधर तुम्हें वैल्यू दे देगा ना। तुम वही यूनिट में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम कर रहे हो, यूनिट चेक करो, यूनिट में कुछ प्रॉब्लम कर रहे हो। आई गेस सबको सारे कमेंट आ गया, अभी बना सकते हो। मैम कैन यू शो द टाइटल बॉक्स वंस अगेन? या और कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो तो पहले हाथ से स्केच कर लो, हाथ से बना लो, फिर बनाओ, तो फिर मतलब डाउट कम होगा डायरेक्ट ऑटोकैड जाने के पहले। पहले हाथ से स्केच कर लो रफली, फिर उसको देख के फिर ऑटोकैड में बनाओ। थैंक यू।
तो आज के क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ओके? अटेंडेंस अटेंडेंस जो सीट सबमिट करोगे, सीट के हिसाब से तुम्हें अटेंडेंस मिल जाएगा, तो टाइमली सीट सबमिट कर दीजिएगा। आज नहीं मैम सबमिट नहीं करना है आज। सबमिट नहीं करना है मैम। सॉरी मैम आज सबमिट नहीं करना है, डायरेक्ट वेंसडे को सबमिट करना है। सबमिट करना है। हाँ तो कब करना है वो बात हो गया ना सर से? यस मैम। यस मैम, सर ने बोला वेडनेसडे। हाँ तो सर उस हिसाब से डेट दे देंगे, ओके? ओके आज ही करने का मैं नहीं बोल रही हूँ, सर के साथ जब भी डेट फिक्स हुआ है तभी करना। अटेंडेंस उस हिसाब से ही तुम्हें आएगा।